നിങ്ങൾക്ക് ബാലേന്ദ്രന്റെ ആളുകളാണ് ഇവിടെ കൊല്ലല്ലേ कहाँ लगे से സാർ ഈ ടൗണിൽ ചാർജ് എടുക്കാനുണ്ടായ കാരണവും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്ത് കാരണം? എന്തായിരിക്കും കാരണം? वही നീലത്തടാകം. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ऑटोग्राफ ഒന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി. समझ गया ये നിങ്ങളാണോ ड्रामा എന്നെ कर रहा है പറയാൻ इंटरव्यू ഫോൺ लेने ചെയ്തത്? ओ अब पता चल गया इसने फोन किया था का ശോഭയില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെ പറ്റി അയാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ആരാണ് താൻ? ഞാൻ ദേശീയവാദി പത്രത്തിന്റെ കറസ്പോണ്ടന്റ് തലത്തിൽ ജോസഫ്. बे ബാലേട്ടാ എന്താ എന്താ ഉണ്ടായത്? ആരെയാണ്? തന്റെ उसे देखने लगा उसके हस्बैंड को ना देखा होता तो നിനക്ക് ആ, ഫോൺ बचा ചെയ്തില്ലേ? देते उसे। അതേ ഭ്രാന്തൻ. എടീ റാസ്കൽ. तो भाई उसके घर आ गया सो भाई बंदूक लेके आ गया है भी वो घर में कि नहीं है सूर का शायद उसी को तो देख रही शायद ये। सोच रहा है वो अच्छा अच्छा सोच रहा इसके साथ चले गए എന്നെ ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ നീ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. कितना गलत सोच रहा ഇനിയും हूँ मैं വൈകുന്നതിൽ बारे में। അർത്ഥമില്ല. വരൂ. ओ भाई आ गया പോലെ എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളെ വേണം. खुल गई नींद उसकी सबने भी कैसे कैसा लग जब नीचे गिर गया ओ भाई वो चैन से सो रही अब सोच रहा होगा कि वही तो नहीं आ गया फिर से। हवा से कर रही हुई क्या पता खिड़की उसे लग रहा होगा वो सच में आ गया। क्या देखा उसने कौन है वहाँ पे? अबे वो तो केवल पेड़ है। ये तो पेड़ है पेड़ हिल रहा था, हवा से हिल रहा था वो शायद। शायद सच बोल देगा ये उससे उसके बारे में पूछेगा शायद ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചതായിരുന്നു. पकड़ लिया था वो भाग गया क्या क्या सोच रही है वहाँ तो कोई जबकि था भी नहीं। എന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് ബാലേട്ടൻ നിന്നെ പെണ്ണു കാണാൻ വന്നു. ജാതകപ്പുറത്തും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കല്യാണം നടന്നില്ല. ബാലേട്ടന് നീയും അയാൾ ബാലേട്ടനോട് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഒരു പത്രമേ ഇല്ല. अच्छा इसको पता है पता चल गया ऐसा। എന്താണ് बैंक अब पता लगा सर अच्छा से अभी तक पता नहीं था कि इसका हस्बैंड है, पर उसकी वाइफ समझ गई थी कि ये जोसेफ ही होगा। कैसा दीवार फांद कर अपने ही घर में। उसकी फ्रेंड आ रही है ना
जब पकड़ लिया उसे പ്രകാശനെ തല്ലിയതും രാത്രിയിൽ പതുങ്ങി വന്ന അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതും എന്തിനാണെന്ന് വ്യക്തമായി എനിക്കറിയണം. അറിയണം. ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്റെ ഉള്ളിൽ ദിനേശേട്ടൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കണ്ടു. അരളയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നതും എന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം കാണാനായിരുന്നോ? നിനക്കപ്പോൾ സന്ദേശങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? എടുത്തില്ല. നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയ നിന്റെ ഭർത്താവ് തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോ നീ क्या क्या सोच रहा है ये एंकर इतना ऑप्शन आप सोच रहा है ഒടുവിൽ നീലത്തടാകവും കളിവെള്ളവും ബോർഡിൽ ഇരിക്കെ ബാലചന്ദ്രമേനോനും ആദ്യമായി പ്രേമിച്ച പുരുഷനെ താൻ കഴുത്ത് നീട്ടി തന്നത് പറയൂ. എന്റെ ഈശ്വര, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്? ആരോടാണ് ഞാൻ കൊഞ്ചിയത്? ആരാണ് उसे पता नहीं बाल चना मैंने ചെയ്ത് നിന്റെ ബാലേട്ടൻ. പക്ഷേ എന്റെ ഭാര്യക്ക് മറ്റൊരു അവകാശം ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കില്ല. बाहर जा रखा है ये क्या इसके हाथ पे डंडा उसी के घर के बाहर जा रखा ना उसे धुनाई करेगा भी डंडा लेके जाकर स्पीड डील जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है उसे बताया भी नहीं कुछ वो मना कर दी कौन है बाल लिट्टन ये खुद ही सोच रहा है सब कुछ उल्टा और पुल्टा भी है। लेके आ रहा ओ भयंकर ये ओ अभी भी सपना तो नहीं देख रहा होगा ये आ सपना देख रहा होगा शायद सपना देख रहा होगा ये रियल में था ये सब या फिर सोच रहा होगा जरूर से अबे ബാലേന്ദ്രമേനോന്റെ ആളുകളാണ്. ഇവിടെ കൊല്ലല്ലേ. कहाँ लगे से ये सब रियल में तो नहीं हो गए और डॉक्टर पाल आ गया ഞങ്ങളെല്ലാരും കുറച്ച് പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കും. എന്താ പേര്? पागल हो गई पूरी तरह से तो सोच रहा था उसको चोट कैसे लगी इसने शायद अपनी वाइफ को मारने की कोशिश की शायद उसकी वाइफ भी दुखी हो गई ये लोग पता नहीं कौन है നമ്മളിവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പോന്നോളൂ. അച്ഛനെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. अच्छा शायद इसके रिलेटिव होंगे ना उन्हें तो दिखाया नहीं इसकी सास को जोसेफ के भाई को उनको कुछ पता ही नहीं है उन्हें होगा पता आगे उस लड़की पापा पता कहाँ जा बोले? पता എന്താ ഉണ്ടായത്? അവൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചോ? തെറ്റ് മുഴുവൻ എന്റെയാ. ശരിക്കും ആലോചിക്കാതെയും അന്വേഷിക്കാതെയും ഇവന്റെ തലയിൽ നിന്നെ കെട്ടി. ദിനേശേട്ടനെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല. അവൻ തനിച്ചല്ലല്ലോ, ഇവിടെ വേറെയും ഭ്രാന്തന്മാരുണ്ടല്ലോ കൂട്ടിനെ. വരാനാ പറഞ്ഞത്.
लेके उसे खींच के उसके पापा। ले जाएंगे तो यही, वो तो पागल ही है। ദിനേശ, जी कौन होगा? ये तो डॉक्टर है शायद, इसी को लिखता था खाता, ऐसा लगता है मुझे। वही है। वही होगा शायद। ശോഭ എവിടെ? മരുന്നും छोड़ दिया शायद उसे। ദിനേശന് എന്ത് സ്നേഹാണ്. അപ്പൊ ദിനേശൻ അവരെ സ്നേഹിക്കണ്ടേ? जिसकी माँ आई थी, ഇനി अच्छा ഒരാളെ ഞാൻ फिर സ്നേഹിക്കില്ല. इसने बात नहीं की उनसे। ये अभी तक वही सोच रहा है। सोचा चलेगा। നോക്കണ്ട, ബാലേന്ദ്ര മേനോന്റെ കൂടെ പോയി അവള്. ദിനേശ, ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ക്യാപ്റ്റൻ ബാലൻ വേറെ, ശോഭ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാളെ മാത്രമേ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. दिनेश को चाहती है बस। അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെയാണ്. അനുസരിച്ച് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതാ പറ്റിയത്. ഈ നാലാംകിട വാര്യകളിലെ अरे इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर है शायद। ഞാൻ സുന്ദരനല്ല ഡോക്ടർ. ഉയരമില്ല. उसको जिसको खत लिखता था वो ആര് नहीं है। പറഞ്ഞു ദിനേശൻ സുന്ദരനല്ലെന്ന്? ദിനേശന്റെ അത്രയും പോലും ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എത്ര സുന്ദരിമാരാണ് അവരെ പ്രേമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കറുകറുപ്പന്മാരായ നീഗ്രോ ആണെന്ന് ദിനേശൻ മനസ്സിലാക്കണം. ശോഭയുടെ കാര്യത്തിൽ ദിനേശൻ ഒരുപാട് പൊസസീവ് ആകാൻ പാടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ശോഭ എന്റേത് മാത്രമാണ്. എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തേ അവൾ ഇതുവരെ എന്നെ കാണാൻ വന്നില്ല? ദിനേശൻ എനിക്കറിയില്ല. ദിനേശനും ശോഭയും എന്നും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക, അതാണ്. ഡോക്ടറാണ് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി. വരട്ടെ ഡോക്ടർ. ठीक होगी शायद। ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. अच्छा उसे लेने जा रहा है। उसे लेने आ रहा है शायद। ये कौन है? जी की सुबह ना उसकी माँ है। होगी शायद। ഭയമേ പരിപൂർണമായിട്ട് സുഖായി. सबसे अलग बोल रहा है। I'm perfectly all right। ओ आगे उसके पापा। അച്ഛാ, ആരൊന്ന് ആശുപത്രിയിൽ വരാഞ്ഞ അല്ലേ? എനിക്ക് ചെറിയൊരു മാനസിക രോഗമായിരുന്നു അമ്മേ. ആവശ്യമില്ലാത്ത സംശയങ്ങളായിരുന്നു എന്റെ അസുഖം. ഞാൻ എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യദോഷാണെന്ന് കരുതിക്കോളാം. ദിനേശൻ തൽക്കാലം പോയിക്കൊള്ളും. उसे जाने के लिए बोल दे। വിളിക്കൂ. ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറോട് എന്ന് ചോദിച്ചോളൂ. അവൾക്ക് अपने मन से बोल रहे हैं ये तो। ശോഭ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അവളങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ.
പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവളെങ്ങ് പോന്നോട്ടെ. ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് എന്റെ മകളെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റില്ല ദിനേശ. എന്റെ കൂടെ വരാൻ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവളാണ്. उससे ज़्यादा बात करने दरवाजे पीछे छुप गई. എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലെന്ന് ശോഭ എന്റെ രോഗകാരണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ശോഭ എന്നിൽ നിന്ന് അകലുമോ എന്നുള്ള ഭയം. ആകെ തകരാറിലായ എന്റെ മനസ്സിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ശോഭ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. എന്റെ മോളെ താൻ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. അവള് വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ശോഭ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോയി അവിടെ നിന്ന്. उसकी मम्मी पापा तैयारी नहीं हो रहे. बोल बन रही कुछ रोने को लगी बस. वो भरोसा नहीं कर रहे ना उस पर. सोच रहे कहीं फिर से ये वैसे नहीं करने लग जाए. ദിനേശ് ചേട്ടാ, आपकी उसकी वाइफ. अच्छा जा रहे उसके साथ हो. अभी भी वैसा ही है. ठीक नहीं हुआ शायद ये. नहीं हुआ ठीक अभी भी. फिर से उठी है. फिर से वही आवाज़ सुन रहा हूँ. वो तो पेड़ की आवाज़ होती थी. उस दिन भी पेड़ की आवाज़ हो रही थी. वो पेड़ के पत्तों की ना. मुझे लगा हो गया ठीक. अभी भी वैसे ही है. तभी तो उसके मम्मी पापा भेज नहीं रहे थे इसे. उन्हें डाउट था ना कहीं अभी वैसा ही ना हो. तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है. वाडा कोन्नो की यंत्रम अच्छी फिल्म थी और उसी टाइप की लगी ये फिल्म जैसे हमने देखी थी वो मैं मेरी पत्नी और वो. थोड़ा बहुत हाँ उसमें कह भी थोड़ा बहुत सकते हैं. ऐसे ही था. हाँ, पर उसमें ये नहीं था शायद इस कि- फिल्म से इंस्पायर हो गई हो ना. हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी फिल्म है. पर उसमें ये था कि उसमें वो इस तरह से पागल नहीं होता. हाँ भले ही वो भी अपनी मतलब उसमें बस उसमें वो शक जो- होता है. बस उसे शक होता है अपनी वाइफ पे. वो जो कैरेक्टर था वो भी ऐसा ही था थोड़ा बहुत. क्योंकि उसे भी ऐसा लगता था कि मैं अपनी वाइफ के लायक नहीं हूँ. वो बहुत सुंदर है और मेरी हाइट छोटी है और मैं दिखने में हैंडसम नहीं हूँ. और ये सब उससे भी रहता था इस तरह का डाउट अपने पे. और फिर धीरे धीरे उसे शक भी होने लग गया था. जब मतलब जो भी सिचुएशन आती थी उस फिल्म में जैसे उसके फ्रेंड आते थे उसके घर में या उसके फ्रेंड जब उसकी वाइफ से मिलते थे या कोई दूध वाला आता था दूध देने तो वो हर किसी पे शक करता था. तो उसमें भी वो कैरेक्टर काफ़ी हद तक मतलब ऐसा ही था. पर ये था उस फिल्म में कि वो पागल नहीं होता. वो बाद में मतलब अब उससे अपनी गलतियाँ समझ में आ जाती है और वो सुधर जाता है. वो मतलब वो मेंटली वो नहीं था. वो डिस्टर्ब नहीं था. वो बस यही फ़र्क था. तो इसमें जो श्रीनिवासन ने जो कैरेक्टर प्ले किया है दिनेशन का तो ऐसे ही लगा मुझे शुरुआत से शायद मेंटल प्रॉब्लम थी ऐसा जो दिखा रहे थे जब डॉक्टर को खत लिख रहा था. हाँ हो सकता है मेंटली पहले से था वो ना बीमार. और धीरे धीरे उसकी जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती गई. मतलब सारी प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उसकी फैमिली से सारे मेंबर चले गए. उसकी माँ उसकी बहन उसके भाई. अब वो ये भी तो झूठ बोल रहा था क्या मेरे घर में सब आ गए हैं. सुबह से नहीं बोल रहा था जब उसे लेने गया था. हाँ मेरी फैमिली सब आ गए हैं मम्मी भाई. फिर क्या पता आ गए थे वो
नहीं नहीं क्या लास्ट पता दिखाया ना उन्होंने। दोनों अकेले दिख रहे हैं थिएटर में। पर जो भी ऊपर ये है कि ये जो कैरेक्टर है मतलब जिस तरह से इसमें जो भी कुछ करता है वो, तो वो काफ़ी हद तक उस फिल्म जो मैं मेरी पत्नी और वो, ये था उसका नाम शायद ना, जिसमें राजपाल यादव था, तो वो जो फिल्म थी वो उसमें जो कैरेक्टर था तो काफ़ी हद तक इसके जैसा ही था वो। और भले ही वो उसमें मतलब वो बीमार नहीं रहता, वो पागल नहीं होता उस फिल्म में, बस यही फ़र्क था। और बाकी वो कैरेक्टर भी काफ़ी हद तक ऐसा ही था, पर ये था कि उस फिल्म की कहानी अलग थी, इस फिल्म की कहानी अलग थी। पर ये था कि थोड़ा बहुत वैसा ही फील आ रहा था ना इस मूवी देख के। इसमें हाँ भले वो फिल्म थी लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कॉमेडी थी, ज़्यादा डायलॉग थे, है ना? नहीं उसमें कॉमेडी नहीं थी ज़्यादा, हाँ मतलब थोड़ा कॉमेडी लगती थी हमें शुरुआत में, मतलब हल्की हल्की लगती थी। हाँ, पर इसमें ऐसा था कि इसमें कॉमेडी काफ़ी थी। हाँ इसमें काफ़ी कॉमेडी थी हाँ और ज़्यादा डायलॉग भी नहीं थे और सही चली थी फिल्म। हाँ बहुत मज़ा आया फिल्म को देखने में, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर रही थी, हाँ 2 घंटे में ही ख़त्म हो गई थी फिल्म। हाँ। और श्रीनिवासन ने जिस तरह से मतलब एक्टिंग की इस फिल्म में वो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं वो। और इसमें मतलब जिस तरह का रोल निभाया उन्होंने, वो मतलब भले ही वो जो भी कुछ कर रहा था उसमें मतलब भले ही वो सीरियस वे में कर रहा था, पर ये कि हमें हंसी आ रही थी उसे देख के। और जिस तरह की हरकतें वो कर रहा था वो एक तरह से फनी लग रही थी, और जिस तरह से वो एक्ट कर रहे थे, और तो मतलब मज़ा आ रहा था उन्हें इस फिल्म में देखने में ना। और मतलब एक तरह से लीड रोल में थे वो इस फिल्म में, और पूरी फिल्म में मतलब उनकी एक्टिंग को जिस तरह से हमने देखा है तो बहुत ही अमेजिंग थी। और जिस तरह से वो अपनी वाइफ पे शक करते हैं, और फिर किस तरह से वो जो पहले कॉल करते हैं वो उसी की फ्रेंड के घर में, फिर फ़ोन पे भी वो अनाप शनाप बोलते हैं फिर उससे घर चले जाते हैं एक टेस्ट रिपोर्टर बनकर उस आर्मी ऑफिसर के घर। तो मतलब वो जो शक करने की आदत थी ना वो धीरे धीरे बढ़ती गई। शक सबसे पहले वहाँ से शुरू हुआ जब उसने उस आदमी को देखा जब वो लकड़ी उसकी जब गिर गई थी, वो रस्सी लेने गया था विनोद कुमार को। हाँ, तो इतनी छोटी सी बात पे ही उसने शक करना शुरू कर दिया था। तो जो शक की आदत थी उसी की वजह से मतलब वो धीरे धीरे वो बढ़ती गई, और आखिर में वो पागल सा हो गया। एविडेंस भी कलेक्ट कर रहा था वो उसके बारे में, उसके क्या क्या था उसके बारे में। तब फिल्म काफ़ी अच्छी बनी, अच्छे से लिखी है इन्होंने ही, श्रीनिवासन सर ने लिखी है, डायरेक्ट की है, काफ़ी टैलेंटेड है। उन्होंने डायरेक्ट भी की है और इसी कहानी खुद ही लिखी है, खुद प्ले भी किया है कैरेक्टर। हाँ, मतलब काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने। और फिल्म मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब अच्छी लगती है देखने में ना, और कहीं भी ऐसा नहीं होता कि बोर करती फिल्म, मतलब एंटरटेनिंग है फिल्म। लास्ट में इस चीज़ का दुख होता है कि उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। हाँ, मतलब एंडिंग जो है वो फिल्म की सैड होती है, क्योंकि एंडिंग में हमें लग रहा था कि ये ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया जैसे, पर उनकी जो हालत रहती है वो वैसी रहती है मेंटली। और सीन्स मतलब काफ़ी अच्छे थे इसमें। एक जो वाला सीन नहीं था जब वो अपनी वाइफ से वो बातें नहीं कर पाते थे, जब भी वो बात करते थे उनकी माँ आती थी बीच में फिर वो चुपके से घर के अंदर जाते हैं और अलमारी के अंदर छुप जाते हैं, और फिर उनकी जो माँ रहती है वो अलमारी का वो लगाती, लॉक लगाती है, फिर वो धक्का देने की कोशिश करता है। हाँ, अब फिर जिस तरह से अलमारी गिर जाती है फिर वो सबको बुला देते हैं, आस पड़ोस के लोगों को फिर वो सब डंडे चाकू लेके खड़े हो जाते हैं। तो वो सीन मतलब काफ़ी फनी था। और जब वो वहाँ ले जाता अपनी वाइफ को सिनेमा हॉल में, हाँ वहाँ भी फालतू में ही वो मतलब झगड़ा कर देता है लोगों से। मतलब
होता ही है सिनेमा हॉल में, सब नज़दीक नज़दीक बैठे हुए होते हैं, तो उसे लगा कि मेरी वाइफ को कोई टच कर रहा है। तो मतलब शक की आदत बहुत शुरुआत से ही दिख रही थी उसके अंदर ना। नहीं, पहले तो वो अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना चाहता था, हाँ, और फिर धीरे धीरे उसे शक भी होने लग गया था। और उस वक्त में जब उसका भाई आता है तब वो ज़्यादा शक करने लग जाता है, अपने भाई पे ही करने लग जाता है शक। तो दोनों लड़ाई होती बीच में, और फिर उसकी फैमिली वहाँ से चली जाती है। हाँ, मतलब उसकी वजह से उसकी फैमिली भी चली जाती है। और तब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब उसकी फैमिली नहीं आती ना, तब और ज़्यादा शक करने लगे, तो वो ज़्यादा शक करने लग जाता है। तो ये ना शक की जो आदत होती है बहुत ख़राब होती है, वही चीज़ दिखा रही है इस फिल्म में। बाकी एक्टिंग सबकी कमाल की है, सभी एक्टर की। हाँ, श्रीनिवासन जो है उनकी एक्टिंग तो बहुत ही अमेजिंग है। और पार्वती जयराम ने निभाया ना ये वाला रोल शोभा का, उनकी एक्टिंग भी अच्छी लगी मुझे। और दोनों लग भी रहते हैं हस्बैंड वाइफ। हाँ, और इनोसेंट भी थे इसमें। नीरज वेणु, ये तो बहुत सारी फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में जगदीश भी नज़र आते हैं, और ललिता ये भी नज़र आती है, दिनेश की माँ थी इस फिल्म में। जगदीश तो काफ़ी सारी फिल्मों में रहते हैं ना, बहुत पहले से ही हैं वो, मतलब मलयालम फिल्मों में। जब हमने वो देखी थी हेरा फेरी, तब मुझे लगा था कि मतलब हेरा फेरी देखी थी, फिर उसके बाद जब मलयालम फिल्में मतलब देखनी शुरू की हमने, तो तब मुझे लगा था कि अच्छा ये मलयालम फिल्में भी हैं। पर जब हमने इतनी सारी फिल्में देख ली है मलयालम फिल्में, तो अब चढ़ा हमें पता कि पहले से ही मलयालम फिल्म में काम करते आ रहे हैं, मलयालम एक्टर हैं। हाँ, और ये जो वो थी हंगामा ही थी ना, हंगामा, हाँ हंगामा थी। तो हंगामा में थे वो, मतलब हंगामा में भी काम किया था उन्होंने, हिंदी फिल्म शायद उनकी हंगामा ही थी। हाँ, पर मुझे लगा था ये हिंदी फिल्मों में ही काम करते हैं और मलयालम फिल्मों पे भी काम कर रहे हैं, ऐसा लगा था मुझे। ये जो हमने वाली मूवी देखी थी, कौन सी थी वो, थुडारुन थी वो, नहीं थुडारुन नहीं, कोई एक फिल्म थी, पता नहीं ममूटी की थी, ये कौन सी थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि मार्को में भी थे ये। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये मलयालम फिल्मों में भी काम करने लग गए, ऐसा लगा था मुझे। जब शुरुआत से, पर ये शुरुआत से ही मलयालम फिल्मों में काम हम पुरानी फिल्में देख रहे हैं तब पता लग रहा है। हाँ, और उन्होंने हंगामा फिल्म भी की थी, तो शायद फर्स्ट ही हिंदी फिल्म थी इनकी वो, और तो शायद किसी हिंदी फिल्म में नहीं देखा मैंने इन्हें। पर हंगामा में जिस तरह से एक्टिंग की थी उन्होंने, वो तब से ही मतलब काफ़ी, मतलब वो क्या था, मैंने ना मतलब तब से काफ़ी पसंद करता हूँ मैंने इनकी एक्टिंग को, जिस तरह से ये एक्टिंग करते हैं। अब हंगामा में हमने कॉमेडी करते हुए देखा था, पर फिर जब हमने मलयालम फिल्म देखी बहुत सारी, तो काफ़ी सारी फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी की हुई है, किसी में सीरियस रोल भी किए हुए हैं, और जैसे मार्को फिल्म थी तो उसमें विलन का रोल प्ले किया है। तो इनकी एक्टिंग बहुत ही अमेजिंग रहती है फिल्म। इसमें उनका रोल मतलब छोटा सा ही था, पर ये था कि अच्छा था, जिस तरह से उनकी लड़ाई होती है श्रीनिवासन के साथ। मजा आया फिल्म को देखने में। हाँ, मतलब फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, और जिस तरह से जो वो मतलब जिस तरह से श्रीनिवासन का कैरेक्टर जो है वो किस तरह से मतलब अपने को वो समझता है, मतलब अपनी वाइफ से कि मतलब कमतर समझता है, और जिस तरह से उसकी शक करने की आदत रहती है, तो जिस तरह का कैरेक्टर है तो उस तरह से किस तरह से मतलब फिल्म आगे बढ़ती है, और किस तरह से फनी सीन्स जो हैं वो फिल्म में आते हैं, और फिल्म मतलब एंटरटेनिंग होती है, मतलब उन सारी चीज़ों से ना, तो काफ़ी अच्छी बना रखी फिल्म, और बाकी एक्टिंग भी सबकी बहुत अच्छी है। फिल्म अच्छी बना रखी है और सही है, ज़्यादा लंबी नहीं बना रखी। हाँ, और एक्टिंग काफ़ी अच्छी है उनकी, श्रीनिवासन की ना, हर फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, और इसमें तो लीड रोल में थे तो तब ज़्यादा मज़ा आया देखने में ना।
ओवरऑल फिल्म अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक्स सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।